Hello friends, let's come to the numerical. What they have given in the numerical, they have given the data. They have given the data, that is they have given for two class marks, raw marks for two class they have given, for class A and for class B marks in the five subject respective they have given, and they are saying calculate the coefficient of variance and compare them. So how to do that? So friends, see here, very first step is you have to calculate x. You have to calculate x. How to calculate it is already given, just name it as x. Then you have to find the summation of x and divide it by number of value, that is 5 is given, that is capital N we have to consider, and just divide it by that capital N, you will get x bar as 42. Simple. Now what is next step? Next you have to calculate x square. How? Just square it. 70 square, 35 square, 50 square, 5 square and 50 square. So in this fashion you can calculate this square, then just sum it, right? Just sum it. Now the next table, this is used to calculate the solution by indirect method. So I suggest you can watch this. I will explain this at the after some time, so that you can easily, first our target is you have to easily you have to solve. So what is target is our find the standard deviation. So what is standard deviation? Basically standard deviation is nothing but the under root of summation of x square divided by n minus x bar square. So this is the basic formula. If you know the formula, you can easily solve this numerical. You have to just remember the formula. What is the formula? In that formula, what we are needed, basically what we need a summation of x square. So we come to know that we have to find summation of x square. So we have calculated x square as summation of x square, right? That means the value, that is 11150. What next? Capital N, that is 5, that they have given. There is no, don't worry about that, right? Then next we need is x bar square. So we have calculated what we have calculated, summation of x, divide just 5, you will get x bar. So x bar, put the value of x bar here simply. So if you know the formula, just put the value and calculate according to the formula. Just put the value, you will get standard deviation as a 21.58. So why this part is here, let's see at the end of the video. So next see, the same you have to calculate for the class B. For the class B, what we need, see here there are two methods. Very first is the direct method, second is the indirect method. If you go through the indirect method, you need you need to do this extra stuff. So I recommend you go by first method, that is the direct method. In direct method you can easily solve without in a very few time and without much more complex calculations. So I suggest go for the direct method. So what is the for B also we have to solve by the direct method. So what is the formula for here? See here, summation of x square upon capital N. So see here, summation of x square is 12750, that is x square. We have say the same, the things we have done for A you have to do for B. Okay, now the same, just put the value, summation of x square upon capital N minus summation of x bar square, that is 50 square, that is x bar is 50 here. Okay, I am not explaining much more in this slide, because in the first, for the same we have calculated for class A. Now class B, standard deviation will come after getting the values, putting in the formula, you will get standard deviation as 7.07. See friends, if you are using the indirect method, you will also get the same value, but you need to do more calculation and more stuff. So I suggest you just go through the direct method and come to the conclusion, the solution. We have to save time and we have to go fast, right? Now we have to compare. Next slide and see what is the comparison that we need. The coefficient of variation is nothing but the standard deviation divided by mean into 100. So what we have to do, just put the values, friends. Standard deviation for A, it is 21.58, divided by mean, that is 42 into 100, you will get 51.38. Similarly you have to do for the class B. Just put the value for class B, it is 7.07 divided by 50 into 100, you will easily come to know that is 14.14. Use the calculator. Calculators are allowed in the examination. So okay, what is next? See friends, here we have calculated the coefficient of variation, that is variance. Okay, now next thing is what we have to do, we have to compare. See here, variation for B is less than variation as compared to A. That means B is more efficient, B is more good. Why? Because it varies least. So friend, which varies least is the best, or which is at less risk, so it is good now. That's why variation in those coefficient is less, that is good. So this is the example.
So I suggest you remember the first method, and in this method you can easily solve this for numerical. So अभी यही हम जो न्यूमेरिकल है हिंदी में समझेंगे। तो देखिए न्यूमेरिकल में क्या दिया हुआ है, क्लास ए के मार्क्स दिए 5 सब्जेक्ट्स के, और साथ ही साथ क्लास बी के मार्क्स दिए हुए 5 सब्जेक्ट से। हमें कहा गया है कि इसका कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस निकालो, ऐसे कंपेयर करो। तो देखिए कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस निकालने के लिए क्लास ए के लिए हमें क्या निकालना है, हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि फॉर्मूला क्या है। सबसे पहले फॉर्मूला देखिए, डायरेक्ट मेथड में फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई कैपिटल एन माइनस समेशन ऑफ माइनस एक्स बार स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला इसे रट लो, तो ये फॉर्मूला इसे रट लो, ये फॉर्मूला आपको याद होना ही चाहिए। इस फॉर्मूले के बाद आपको क्या करना है, इस फॉर्मूले में हमें क्या चाहिए, देखिए हमें चाहिए समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, पता है कि नहीं पता है आपको, समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर हमें चाहिए कैपिटल एन और एक्स बार का स्क्वायर हमें चाहिए। तो बस सिंपल है। तो आपको क्या करना है, ये जो पूरी बातें मैंने लिखी है ना, ये इनडायरेक्ट मेथड से कैलकुलेट करने के लिए आपको आगे पता चलेगा, लेकिन इसको आपको इग्नोर करना है अभी। तो इसके लिए आपको इग्नोर करना है। तो कैसे इग्नोर करना है मैं आपको यहाँ पे चलो लिख ही देता हूँ। ये जो पार्ट है ना, इसको आपको अभी इग्नोर करना है, इग्नोर। ओके नाउ चलो हमें क्या देखना है, हमें चाहिए एक्स बार, हमें चाहिए समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर। तो एक्स हमें पता है, जो ए के मार्क से पूरे एक्स ले लिए, एक्स का स्क्वायर निकाल दिया, पता है इजीली कर सकते हैं कैलकुलेटर से। 70 का स्क्वायर 4900 है, 50 का 2500, इस प्रकार से स्क्वायर निकालो। नेक्स्ट बात आ जाइए, समेशन ले लो, सबका टोटल करो, कैलकुलेटर की मदद से आप कर सकते हैं। तो एक्स का पूरा टोटल आ गया समेशन ऑफ एक्स, एक्स स्क्वायर का भी पूरा टोटल ले लो, वो आएगा 11150। अगर अभी यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट हमें इस वैल्यू, हमें क्या चाहिए अभी, एक्स बार का स्क्वायर चाहिए। एक्स बार मतलब क्या होता है, बार मतलब बेसिकली मीन होता है, जिसे हम एवरेज भी कर सकते हैं सिंपल भाषा में, करेक्ट है। तो देखिए एक्स समेशन ऑफ एक्स बार हमें निकालना है, तो समेशन ऑफ एक्स को डिवाइड करो एन से, मतलब इसको समेशन एवरेज निकालना है यार, बेसिकली इट इज़ एवरेज। तो एवरेज आ गया 42, चलो सिंपल भाषा में, ओके एवरेज आ गया 42। तो देखिए तो जस्ट वैल्यू इसमें पुट कर दो ना। अभी क्या है, इस फॉर्मूला हमें पता है, अंडर रूट ऑफ समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर का अपॉन कैपिटल एन माइनस एक्स बार स्क्वायर। रट लो, ये फॉर्मूला वेरी इंपॉर्टेंट है, इसके बगैर आपको कुछ नहीं आएगा। तो फॉर्मूला रट लो, फिर फॉर्मूला में आप वैल्यू पुट करो, कैलकुलेटर की मदद से इसे सॉल्व करो, सिंपल बात है। यूज द कैलकुलेटर फॉर द सॉल्यूशन, यूज द कैलकुलेटर फॉर द सॉल्यूशन। तो आपका आंसर आ जाएगा, स्टैंडर्ड डिविएशन आपका आ जाएगा, आंसर मतलब स्टैंडर्ड डिविएशन आपका आ जाएगा 21.58। चलो नेक्स्ट, अब हमने ये क्लास ए के लिए किया, यही बात हमें क्लास बी के लिए करनी है। चलो क्लास बी के लिए करेंगे, चलो सेम बात करेंगे जैसा पहले किया था। हमें फॉर्मूला पता है, फॉर्मूला में हमें क्या क्या चाहिए वो वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली, मतलब एक्स और एक्स स्क्वायर किया, दोनों का समेशन किया और एवरेज निकाला। तो एवरेज मतलब एक्स बार हमें मिल गया, एक्स स्क्वायर का भी बार हमें मिल गया। तो वैल्यू यहाँ पे जस्ट पुट कर दो। मैं यहाँ रिपीट नहीं करूँगा क्योंकि मैंने पूरा फॉर्मूला यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, तो यहाँ पे मैं यहाँ रिपीट नहीं कर रहा हूँ, आप जस्ट कैलकुलेट कर लीजिए। और आपका स्टैंडर्ड डिविएशन फॉर बी आएगा 7.07। मैंने कैलकुलेट करके रखा है आपके लिए, आप इसे कैलकुलेटर की मदद से ट्राई कीजिए, कैलकुलेटर एग्जाम में अलाउड है, सिंपल कैलकुलेटर लेके जाइए, साइंटिफिक नहीं। ओके तो ये जो मैंने बताया था आपको यहाँ पे इग्नोर करना है, ये क्यों इग्नोर करना है, क्यों आइए यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे और एक मेथड होता है, ये स्टैंडर्ड डिविएशन का अलग फॉर्मूला है, इसे कहते हैं कि इनडायरेक्ट मेथड है ये। तो इनडायरेक्ट मेथड से आप सॉल्व करेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें एक्स्ट्रा कैलकुलेट करनी पड़ेंगी, जो मैंने आपको बताया यहाँ पे इग्नोर करने के लिए, क्योंकि डायरेक्ट मेथड से भी वही आंसर आएगा, कोई अलग से कुछ आप नहीं झंडे गाड़ोगे, है ना। तो आपको करना वही है जो सिंपल है। चलो नेक्स्ट करते हैं। जो अभी हमने क्या कर लिया, दोनों का हमने क्या कैलकुलेट किया, कोएफिशिएंट कैलकुलेट किया। तो देखिए बी का कितना आया 7.07 आया, और ए का कितना आया 21.58। तो हमें क्या करना है, कंपेयर करना है, राइट। तो उसके लिए फॉर्मूला है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन हमें निकालना है। हमने अभी तक क्या निकाला था, स्टैंडर्ड डिविएशन निकाला। तो कोएफिशिएंट क्या होता है, कोएफिशिएंट के लिए फॉर्मूला होता है वही कि स्टैंडर्ड डिविएशन को मीन से डिवाइड करो इंटू 100, राइट। स्टैंडर्ड डिविएशन इंटू मीन डिवाइड बाय मीन इंटू 100। तो क्लास ए के लिए कितना आ जाएगा, हमने स्टैंडर्ड डिविएशन कैलकुलेट ऑलरेडी किया है 21.58। तो एक्स बार मतलब मीन कितना आया था 42 इंटू 100। तो क्लास ए के लिए कोएफिशिएंट कितना आ जाएगा 51.38। क्लास बी के लिए सेम है, उसको जस्ट पुट कर दो, स्टैंडर्ड डिविएशन को डिवाइड कर दो मीन से, मल्टीप्लाई कर दो 100 से, तो आ जाएगा। तो आ गया, मतलब ये तो यहाँ पर आपको क्लियर हो गया। तो अभी हम देखेंगे क्लास ए के लिए कोएफिशिएंट कितना आ गया 51 आ गया, क्लास बी के लिए कोएफिशिएंट 14 आ गया। तो यहाँ पे एक बात समझो, हमने क्या कैलकुलेट किया, हमने ये कैलकुलेट किया, यहाँ पर हमने क्या कैलकुलेट किया, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, मतलब कितना वेरी हो रहा है। देखो बी कितना वेरी हो रहा है 14, 14 वेरी हो रहा है, क्लास ए 51 वेरी हो रहा है, मतलब क्लास ए ज़्यादा वेरी हो रहा है ना, मतलब क्लास ए अच्छा नहीं है क्योंकि वो वेरी हो रहा है, लेकिन ये क्या है स्टेडी है, कम वेरी हो रहा है, इसलिए ये थोड़ा अच्छा है। हमें ये मतलब ये क्लास बी के लिए रिस्क कम है, ऐसा हम बोल सकते हैं। मतलब क्लास बी के बच्चे क्या हो सकते हैं, कम फेल होंगे,
राइट, इसमें वेरिएशन ज़्यादा है तो ये ज़्यादा फेल हो सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि बी इज़ मोर इफेक्टिव, इसमें वेरिएशंस कम है। तो फ्रेंड्स ये केस स्टडी था, ये न्यूमेरिकल था, मैंने आपको अच्छे से बताया है। सो इस वीडियो को आप शेयर कीजिए और आपको एग्जाम के लिए वेरी ऑल द बेस्ट फ्रॉम द टीम ऑफ बैंकर जोन।